Kurukshetra University, national and international seminars and workshops on the issues pertaining to women and environment and women empowerment and capacity building of women. She has been instrumental in diligently promoting women empowerment through training to stakeholders of Indian Institute of Wheat and Barley Research, Karnal, Rajiv Gandhi State Institute of Panchayati Raj and Community Development, Nilokheri, Extension Education Center, Nilokheri, Haryana, and other different colleges of Haryana. She has recently organized a course on gender issues and diversity management. Dr. Jain has undertaken a project on implementation of Manrega, a social study, and has published a number of research papers in national and international journals. She has associated with different universities as a member of board of studies, selection committees, screening committee, and other assignments. At present, she is working as director of HRDC Kurukshetra University. She has also honored by Haryana State Women Commission for her contribution in social service. We are really thankful and grateful to Dr. Preeti Jain for willingness to share invaluable knowledge and insight with us today. Without further delay, I warmly welcome Ma'am Preeti Jain to share her views. Ma'am, we are eagerly waiting for your lecture. Over to you, ma'am. थैंक यू डॉक्टर निधि। सबसे पहले सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वैश्य कॉलेज जो सबसे पहली बार अपना एनईपी ओरिएंटेशन एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम कर रहा है, तो उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसा Thank you कि so डॉक्टर much, ma'am. निधि जैसे Thank you, डॉक्टर निधि ma'am. ने बताया कि दिस इज द वेरी फर्स्ट डे एंड वी आर गोइंग टू इंटरैक्ट ऑन ए वेरी पर्टिकुलर थीम, दैट इज द स्टूडेंट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। I'm sorry to say, Dr. Nidhi, that I'm not delivering any lecture, but as far as the NEP orientation and sensitization program is concerned, we are good teacher and we are in the process to be better teacher. And as far as the NEP 2020 came into force, definitely there are 8 issues, and in the contemporary society and in the present education system, it is very much relevant and expedient that we have to explore ourselves, we have to sensitize ourselves, we have to orient ourselves. So that's why there are some observations on this particular theme, that is the student diversity, and how, as an instrument of the education institutions, what we can contribute our excellence and potential to make our education institutions more inclusive, more interactive, and more participatory. तो सॉरी, लेक्चर नहीं होगा, सिर्फ एक सबमिशन होगी। जैसे कि आपने कहा कि 20 साल हैं, थोड़े टाइम से पहले आ गए और थोड़ा और टाइम है कि आने वाले टाइम में एज ए टीचर हम अपने कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को और बेहतर बनाने के लिए। As far as I perceive the objective of NEP 2020, so basically there are some dynamic changes in the existing education policy. और जैसे कि बहुत सारे इसमें अगर हम फैक्ट्स को कंसिडर करते हैं, देर इज मोर एम्फोसिस ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देर इज मोर एम्फोसिस ऑफ द मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, एंड साइमल्टेनियसली देर इज अ सेगमेंट कि हमारे यहाँ जो ब्रेन ड्रेन की पॉलिसी से या ब्रेन ड्रेन की जो प्रॉब्लम है हम उससे रूबरू हो रहे थे, उसको कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करने की कोशिश भी की गई है। इसका माने कि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम जो है, हमारी जो बाहर की यूनिवर्सिटीज हैं, वो अपने कैंपसेस हमारी इंडिया में भी खोल सकती है और हमारी यूनिवर्सिटीज के कुछ ऑफिसेज जो है, जो कैंपसेस हैं, वो दूसरी यूनिवर्सिटी में भी खोले जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी है कि हम एनईपी 2020 को अगर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो जो हमारी यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, और जिसका नाम अब चेंज भी हो गया है, तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द टीचर कि हम और आप मिलजुल कर इस एजुकेशन पॉलिसी को कितना सक्सेस कर पाते हैं। आई एम वेरी मच elated to share that a Kurukshetra University was the first in the country to implement national education policy fully. And for this purpose, we have received a platinum award from the state of Haryana itself. So, as far as we take this particular theme, that is the student diversity and inclusive education, I would just like to mention over here
कि एज ए टीचर जब हम अपनी क्लास में एंटर करते हैं तो हम बहुत सारी डाइवर्सिटी से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं जब हमारे स्टूडेंट्स की बारे में बात करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स जरूरी नहीं है कि गर्ल्स हों, जरूरी नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर सेक्स को बिलोंग करे, पर्टिकुलर रिलीजन से हो, पर्टिकुलर रीजन से हो, एक ही कल्चर को बिलोंग करते हो, एक ही उनकी सोच हो, एक ही ओपिनियन हो, एक ही परसेप्शन हो, एक ही आइडेंटिटी हो, अदरवाइज तो मोनोटोनस होगा। तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो डाइवर्स बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि व्हाट इज द डाइवर्सिटी अमंग स्टूडेंट्स। और ये जो हमारे पास डाइवर्स स्टूडेंट्स हैं, जो कि अलग अलग नेचर के, अलग अलग परसेप्शन है, ओपिनियंस अलग है, चॉइसेस अलग है, हैबिट्स अलग है, चीजों को देखने का जो नजरिया है वो अलग है, सोचने का अंदाज जो है वो अलग है। तो हम ये जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास फ्लावर्स हैं, जिनको कि नर्चर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है, जिनको कि फ्लरिश हमें करना है, unless and until they will be in a unit, they will be, communicate with each other, they will be, interact with each other, they will not be participating each other, we cannot expect, we cannot imagine that we have achieved the purpose of inclusive education. So keeping into these consideration, this particular theme has designed what is required from all of us at the present day. But before starting my presentation formally, I would just like to share a small video so that we may be able to understand why we are here. क्या जरूरत है? हम असिस्टेंट प्रोफेसर है, हम एसोसिएट प्रोफेसर है, लेकिन उसके बावजूद भी हर टीचिंग कम्युनिटी के लिए मैंडेटरी है कि एनईपी ओरिएंटेशन एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम को अटेंड करना बहुत जरूरी है। और इस पर्टिकुलर थीम के क्या माने हैं, रेलेवेंसी क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, आई होप इस छोटी सी वीडियो से हम शायद अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि समाज में ऐसा बिहार के हैं हम, पर हमको बिहारी मत कहना। क्योंकि समाज में ऐसा फैला है बदहाली, बिहारी होना हो गया है गाली। मॉम डैड बिहार से थे, आई एम फ्रॉम दिल्ली बोलते हो, अपनी ही देश की भाषाओं पे तुमको विपत्ति है, सबको देशद्रोही बोल देते हो, तुम्हें रोके भला किसकी मजाल है। अपने ही देश के उत्तर पूर्वी लोग तुमको लगते चाइना का माल है। मेरी जो सबसे पसंदीदा कविता जो सब लोगों को पसंद आ रही है वो है जागीर। और इस कविता को जब मैंने लिखा था तो ये मैंने कॉलेज के दौरान लिखी थी। जब मैं कॉलेज में शुरुआत कर गया था तो वहां पर हर कोई अलग अलग स्टेट से आके अपने बारे में बता रहा था। तो मेरे सीनियर्स ने भी मुझसे पूछा कि तुम कहाँ से हो, तो मैंने कहा मैं तो दिल्ली से ही हूँ। कह रहे नहीं वैसे कहाँ से? मैं कहा मॉम डैड बिहार से थे, मैं दिल्ली से। और ये लाइन उस दिन से मेरे अंदर दिमाग में घूम रही थी कि मैंने ऐसा बोला क्यों, और मेरे जैसे कितने लोग होंगे जो इस तरीके की बातें बोलते हैं। तो फिर ये कविता का जो शुरुआत है वो यहीं से हुई। तो सुनिएगा कि देखो हमरा कोड़ा बोलेंगे, देखो हमरा कोड़ा बोलेंगे, पर तुम इसे हमारी लाचारी मत कहना। बिहार के हैं हम, पर हमको बिहारी मत कहना। क्योंकि समाज में ऐसा फैला है बदहाली, बिहारी होना हो गया है गाली। और जानते हो ऐसा हम काहे कह रहे हैं? क्योंकि हम बिहारी होने का जिल्लत सह रहे हैं। और गर्जे कोई समस्या है तो इसका निवारण नहीं है, तुम्हें हो बस, इसका कोई दूजा कारण नहीं है। क्योंकि तुम ही हर बार इंसानियत को क्षेत्रीयता के तराजू में तोलते हो। मॉम डैड बिहार से थे, आई एम फ्रॉम दिल्ली बोलते हो। अब
मोमो से तुम्हारे मुंह का स्वाद बढ़ता है और लिट्टी चोखा से नाक चढ़ता है। लहजे पाक को तुमने नापाक कर दिया, अदब के भैया जी को तुमने मजाक कर दिया। मैं तुमको कह रहा हूँ तो सोचोगे कि तुम्हारी खता क्या है। बोल देते हो मजाक में बिहारी, कौन होता है बिहारी तुमको पता है। आज मैं आईएएस की बात नहीं करूंगा, गणित को तो छोड़ दो ना, ये कहूंगा कि कितने ऊंचे पदों पर हमारी हिस्सेदारी है। बस कोशिश करूंगा तुमको ये समझाने की कि होता कौन एक बिहारी है। जो हर सूरत बदल दे वो दिनकर रामधारी है, जो पर्वत चीर दे वो मांझी की जिद और खुमारी है, जो सत्ता हिला दे वो जयप्रकाश क्रांतिकारी है, जो संसद चला दे राजेंद्र प्रसाद की समझदारी है, जो बदल दे गणित को वो आर्यभट्ट व्यभिचारी है, जो कर दे पावर की सहनाई से बिस्मिल्लाह खा के धुन वो प्यारी है। इम्तियाज, शत्रुघ्न, मीका, सुशांत, ये सब की कलाकारी है। अब रुक जाता हूँ क्योंकि ये लंबी लिस्ट अभी भी जारी है और अभी भी दिल में कोई खलिश हो तो गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हारे लिए हरियाणा वाले सट्टा चलाते हैं, यूपी वाले कट्टा चलाते हैं। अपनी ही देश की भाषाओं पे तुमको विपत्ति है। सबको देशद्रोही बोल देते हो, तुम्हें रोके भला किसकी मजाल है। अपने ही देश के उत्तर पूर्वी लोग तुमको लगते चाइना का माल है। अब इसको तुम नजरअंदाज मत करो, अपने जमीर को नाराज मत करो, क्योंकि तुम्हारे ख्वाब की कोई ताबीर नहीं है। ये देश सबका है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। So basically, when I was going through this particular video, I had the impression that there are some students belonging to different culture, belonging to different region. उनके pronunciation डिस्ट्रिक्ट ग्रांट कमीशन है और जिसका नाम अब चेंज भी हो गया है। तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द टीचर कि हम और आप मिलजुल कर इस एजुकेशन पॉलिसी को कितना सक्सेस कर पाते हैं। I am very much elated to share that the Kurukshetra University was the first in the